मोर वाइड स्प्रेड एक्सपेक्ट। हम ऐसे दो राहे पे खड़े हैं इस मुल्क में, देखिए हमारे ऐसे दो राहे पे खड़े हैं। आपकी बात सर आंखों पे बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट में 24 जजेस हैं, 24 की 24 ने 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तस्लीम कर लिया है, ना चाहते हुए या चाहते हुए तस्लीम कर लिया। अब क्या bound by that, our vote says so. बल्कि मैं कह रहा हूँ कि हम कह भी रहे हैं कि जी फुल कोर्ट में सबको मिला दो, ये भी हम कह रहे हैं। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, हमने बार बार कहा है, तमाम जजेस जो सीनियर जजेस सब ने कहा है, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस की जनाब, इन सबको तो वही कह रहे हैं कि आप इस पिटीशन के लिए ये हुक्म दें कि ऑल जजेस आर कॉन्स्टिट्यूशनल जजेस एंड मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। Will you accept that? If you decide that by a judgment that no judge can be excluded, I will take it today. No, if all judges are included in the constitutional bench will be acceptable to all petitioners, then the issue will not come whether the Judicial Commission is appointing authorities rightly doing so or wrongly doing so. I am saying the pre-26 amendment judges, if they are all brought in, I am fine. इल्जाम लगाना कि बेनिफिशियरी है, आई एम सॉरी टू से, ये नहीं वो गलत सेंस में हमने नहीं कहा। टॉकिंग अबाउट सर, one of the cases the case made out is, लेकिन वो इंप्रेशन आप ऐसे दे रहे हैं कि जैसे वो गलत उनका है। तो वेन्यू ऑफ एलिवेशन चीफ जस्टिस का हमेशा सुप्रीम कोर्ट concerted scheme to take over the Supreme Court. The 26th constitutional amendment is one part. The increase in the number of judges is another part. It is to create the Supreme Court in a new shape and form. Yes, you may. That is the case set up in one of the petitions. This is your valid argument. सिर्फ इतनी सी बात है कि जो ऑनरेबल जजेस हैं उनको बीच में न रगड़ा जाए, सिर्फ इतनी सी बात है। ठीक है, I hate to take this is my point. Increase of judges, I have the highest respect for each one of you sitting here. This is increase of judges, strength of judges, और वो तो नहीं चैलेंज हुआ कहीं। Why, sir? चले वो अलग चैलेंज है ना, बट ये डोंट लेबल देम दैट दे आर द बेनिफिशियरीज। बेनिफिशियरीज तो वाली बात है ही नहीं ना उसमें। वो 56 अमेंडमेंट से तो कोई ताल्लुक नहीं है बेनिफिशियरी और नॉन है। जब वो आगे होगी आपके सामने, दैट्स अ डिफरेंट। आपका केस तो सिंपल है ना जी, prior to the 26th amendment, so we should just stick to that and just this is the point. there's no reason to deviate from where your case is. Now on, I need not read any passages, but I will just give the case law on how clauses purporting to oust jurisdiction are to be construed. एक तो यही है ज़ियाउर रहमान, फिर पीर साबिर शाह, PLD 95 सुप्रीम कोर्ट 66। आप पढ़ रहे तो नोट करवा दीजिए या लिस्ट दे दीजिए आपने। मैं आपको लिखवा देता हूँ, तो लिखवा दीजिए इसके अंदर प्लीज। वी कैन या आप हमें लिख के दे दें सारा, if you like, with the passages reproduced, is just easier to go through. I will That's much easier. I will उसका make my point sum up कर दें हमारे लिए, उसका point क्या है? I will make my written आपके जो citations है उसका basic crux क्या है, point क्या है? that if the contention is that 191A is an ouster of the jurisdictions of the Supreme Court sitting in bank, it has to be narrowly construed. Every attempt must be made to preserve this jurisdiction of the Supreme Court sitting in bank. That is the point. लेकिन मैं एक बात मैं अब बता दूं जो कि जुडिशियल कमीशन के हवाले से है। अटॉर्नी जनरल साहब मौजूद है, ही इज मेंबर ऑफ JCP. Almost in every meeting of the Judicial Commission, Chief Justice and the senior judges, including me, हमने ये मुतालबा किया कि तमाम जजेस को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हिस्सा होना चाहिए। सपोज अगर आज ये बात मान लीजिए कि तमाम जजेस सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना दिए जाते हैं, मैंने कल भी सवाल किया था, फिर आप मुतमईन होंगे? मैंने तो आपसे कहा, to me it makes no difference कि you wear the hat of a constitutional bench or a regular bench, because I believe that there is inherent judicial power under the Constitution to examine the Constitution. तो आप ऐसा रास्ता निकालें कि जिसमें आपका मसला हल हो जाए कि तमाम जजेस बैठ जाए, हमें वो रास्ता दिखाएं। बस इतनी सी बात है। हम ये नहीं करेंगे किसकी जुरिस्डिक्शन को छोड़ दे इस बात को। I would suggest should your lordship should hear all the counsels who will be appearing, and perhaps they are more persuasive than I am, तो ये नौबत नहीं आएगी। अगर हम भी आपस में बात करेंगे, we will also think about it,
But for the time being, this should await the submissions of the rest of the Learned Council. Now, my lord, this brings me वो आपने जवाब नहीं देखे क्या to तमाम the judges question that was posed by Justice Naeem Akhtar. Justice Naeem Akhtar, I was hearing the case on video link. Who should the direction be to constitute the full court? My submission is that if applying your judicial mind, your lordship comes to the conclusion that this is the matter in which there should be a full court, then the direction need not be directed to anyone. All that your lordship has to say is, let the full court be formed. And there are cases in which this has been done. These are the cases of IG Police versus Ghulam, PLD 1974, Supreme Court 76, at page 77. Abdul Rashid or Rashid versus State, PLD 1972, Supreme Court 295. नहीं, इसमें आपके जुडिशियल ऑर्डर से उन्होंने फुल कोर्ट कहा है बनाने के लिए, सर, अब किसी को डायरेक्शन नहीं दिया। हाँ जी, किसी को डायरेक्शन नहीं दिया चीफ डायरेक्शन को या दी, मगर इन पास्ट व्हेन देयर वाज नो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, यू रिमेंबर दैट मैटर इज रेफर्ड टू द चीफ जस्टिस and subject to his approval the larger bench or the full court is constituted. आपका फैसला तो सब पे बाइंडिंग है ना? No, but I am asking this question to you कि आप जो बात कर रहे हैं किसी जजमेंट में ये आया है कि कोर्ट ने खुद फुल कोर्ट बना दिया है? I don't think so. Always the matter is referred to the chief justice when he was the master of Rostov. That is an administrative act, sir. The litigant is not to be burdened with the administrative act. वो तो आपका है कि आप कैसे करते तो वो हैं। दिखा दे कौन Maybe सी कोर्ट registrar में? करता है। Is there any judgment of this court directly asking for the full court Yes, without the approval of the chief वही justice? तो मैं साइड कर रहा हूँ। दिखाइए जरा से कौन सा वाले में है, जरा देखें। PLD 74, Supreme Court 76. जी PLD नहीं 74, ये एक आपने 95 कौन सा बोला है? देना जरा भाई। पहला है PLD 1974, Supreme Court 76, Inspector General Police. अभी ये नहीं है, ये साइड किया है, इन्होंने साइड किया है। 1974 सुप्रीम कोर्ट 76 इसका पेज 77, लास्ट लाइन। ओके, दूसरा वाला भी निकालो। Last line. Let this matter be placed for consideration before the full court. Full stop. for consideration. PLD 1972, Supreme Court 295. ये इसमें लिखा है ना Full for court meeting है, ये full court not in the constitution of bench or the before the court. जी, ये तो full court meeting में कंसिडर करने के लिए कहा। सवाल ये था कि डायरेक्शन किसको दें अगर आप फैसला करते हैं। डायरेक्शन नहीं है, देखिए अब ये देखें PLD मनीष सर इसमें देख लें लास्ट लाइन आप पढ़ लें let this matter be placed before for consideration. the matter be placed for consideration before the full court. not in the court. who will before the consider? full court meeting. ये मीटिंग कहाँ है सर? इसमें तो फुल कोर्ट मीटिंग कहाँ है? कॉन्स्टिट्यूट किया है या कहीं पे? नहीं सर, इसमें कॉन्स्टिट्यूट किया है। Let the नहीं, matter- आप बात सही कह रही है, वो फुल कोर्ट मीटिंग नहीं है, बट फुल कोर्ट के लिए वो कहते हैं, मगर इन्होंने फिक्स नहीं किया है इस केस को फुल कोर्ट में, ये देख ले सर, दूसरा केस PLD 72 फिक्स नहीं सुप्रीम किया है। वो कहते हैं कि ठीक है, अगर सिंध गवर्नमेंट ये उसको कोई इतराज है तो लेट इट बी प्लेस बिफोर द फुल कोर्ट। PLD फुल 19 कोर्ट इटसेल्फ हैज नॉट बीन PLD 1972 Supreme Court 295. PLD 1972 Supreme Court 295. At page 301, the last line. The case shall be laid before the full court as soon as possible after long vacation. तीसरा कहाँ से पढ़ रहे हैं? last line at page 301.
1970 SCMR 419. 1970 SCMR 419. Last line of the case. It is therefore advisable to adjourn this appeal to be heard with all other cognate matters by the full court at Lahore. On second पहले वाले में भी जो आप पढ़ रहे थे ना 1970 SCMR उसमें 498 के हवाले से बेल बिफोर अरेस्ट के कुछ पॉइंट्स को फ्रेम करके उन्होंने कहा था इसको हम रेफर कर रहे हैं फुल कोर्ट को. This was only a reference. सर उन्होंने तो डेट भी दे दी है हाँ full court उन्होंने की। कहा कि ईद नंबर छुट्टियों के बाद March. लगाएं बट इट वाज ए रेफरेंस फॉर टू द फुल कोर्ट. March. जो एडमिनिस्ट्रेटिवली उसमें डील होना था वो हुआ होगा बाद में पता नहीं कब बनी थी या नहीं बनी In थी. 70 में तो Chief Justice is also the member of the bench. 3-member bench. अच्छा ये आप कौन सा कह रहे हैं 419 419. 420 पे Mahmood Rahman Saab was the member of the bench. तो जमा भी कर ले। No, my lord, why a full court? फुल कोर्ट एट लाहौर चीफ जस्टिस साहब थे वो खुद ही नंबर है उसके. नंबर क्या होता है हेड कर रहे हो मुझे सिखाना कैसे जी ये 419 के अंदर देखा आपने ये जी 419 महमूद रहमान चीफ जस्टिस वाज द सीनियर मेंबर ऑफ द बेंच. उन्होंने कहा इट इज देयरफॉर एडवाइजेबल टू एडजर्न दिस अपील टू बी हर्ड along with the other cognate matters by the full court at Lahore on 2nd March 1970. He was one of the members of the bench. Yes, he was One of the members of the bench. one of the member but heading the bench as a Chief Justice Pakistan. Now, why a full court? उससे पहले फुल कोर्ट पे अब बात यहाँ पे सारी हो रही है फुल कोर्ट की. फुल कोर्ट मीन ऑल द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. नहीं नाउ एवरीवन इज जज ऑफ द सुप्रीम पहले मैं आ रहा हूँ why a full court, फिर आ रहा हूँ why only those members who were How can we exclude our learned brother or sister from the definition of judge of the Supreme Court? Let me make a submission. There is no other sister. Let me make a submission. हमें और कुछ पता नहीं। Old sisters. Lord, the fundamental principle is Sisters को न बिठाने की वो उसमें कोई fundamental principle of jurisprudence is that no one should be a judge in his own cause. Number two, एक मिनट के लिए यहाँ रुक जाए. justice must not only be done, it must seem to have been done. यहाँ पे रुक जाए. अब आपको बताना होगा what is our personal cause in this case. इसका मतलब तो ये हो गया कि ये 8 भी ना बैठे और जो बाद वाले भी ना बैठे सिर्फ 8 को बिठा देते हैं आपके केस में पूरा वो सुन लेंगे. नहीं वो फिर मलिक साहब 8 भी नहीं बैठ सकेंगे वो. उनका भी Chief cause Justice है. को भी फिर एक्सक्लूड. नहीं आपने कहा कि जो ये बात 26 ये बात आपने बड़ी- कहा जो ये बात- 26th अमेंडमेंट के बाद आए हैं वो नहीं, इसलिए कह रहा हूँ ये मैं. बात- देखिए 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 मलिक साहब मुझे खत्म तो करने दें. मलिक साहब मैं इसलिए कह रहा हूँ जरा 1 मिनट सुन लीजिए. आपको किसी एग्जीक्यूटिव डोमिनेटेड जुडिशियल कमीशन ने नहीं अपॉइंट किया था. सुनिए बात ना. नहीं कर हम फुल कोर्ट की बात कर रहे हैं. सुनिए मलिक साहब सुनिए. उसके बाद 26th अमेंडमेंट के बाद जो है जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं 2000 मलिक साहब सुनिए. उन अपॉइंटमेंट्स में क्या उन जजेस का कोई भी किरदार है? और दूसरी बात यह कि इफ दे रिफ्यूज तो वो तो फिर उसके बाद उन्हें रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी. दे वर द चीफ जस्टिस ऑफ देयर रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स. और जुडिशियल कमीशन ने कहा अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन दे वर बाउंड टू ओबे द
नहीं, लेकिन ये तो केस Recommendation. डिसाइड होने के बाद होगा कि दे शैल रिमेन हियर और गो बैक। अच्छा एक मिनट, इतना अच्छा होता सच फाइन पीपल कि अगर वो उस प्रोसेस से आए होते हैं। देखिए वो उनका चॉइस नहीं है जो मलिक साहब, वो उनकी चॉइस नहीं है। सर अगर उनकी चॉइस होती, कहीं कंसेंट की बात होती, फिर आप देखें उनके मोटिव्स और उनकी चॉइस का इस वक्त इशू नहीं है। इस वक्त इशू ये है कि जो वो ये केस सुन रहे होंगे उसका इफेक्ट क्या है। वो बात की बात है। Supposing the petitioners prevail and the judicial commission is struck down, फिर तो जो आपने Fast बात and कही, close transaction. फिर वही डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी पे जाएंगे, Not the फास्ट judge एंड of क्लोज his own ट्रांजैक्शन cause. पे जाएंगे मलिक साहब, we कि जो agree. हो गया सो हो गया। फास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन सुबह से बल्कि एक महीने से हम सुन रहे हैं, फास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन। या डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी पे जाएंगे ये फास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन पे जाएंगे। व्हेन देयर आर फास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन उनको या डॉक्ट्रिन ऑफ डिफेक्टो पे जाएंगे। अच्छा मलिक साहब, देन हाउ, Why can't we tread the constitutional path? मलिक साहब सुनिए ना, फिर हाउ देन द चीफ जस्टिस कैन हेड द बेंच? My the lord, question, yes, this is a very once your lordship says full court, then it is for each individual judge to look into his own conscience who will be the and chief to recuse or not to recuse. who will be the chief justice? Who will be the chief justice? उनको ना It will be for the learned chief justice to recuse or not to recuse. Which chief justice nominated by the 26th constitution amendment? Well, will that chief justice will be- head the bench? क्या वो चीफ जस्टिस जिसको It is 26 an order being passed by the constitutional bench. नहीं नहीं सुन ले जरा So to that extent, it would be the incumbent chief justice. इसका मतलब है लिटरली हम उसको खत्म कर रहे हैं 26 बिठा दें, amendment। बाकी जजेस को एक्सक्लूड कर दें जो 26 अमेंडमेंट के बाद आए। सर देखिए ना, कोई बेनिफिशियरी कह सारा वो जजमेंट कैसे आउटस्टैंडिंग जजमेंट होगी जिसमें किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं। विल दिस जजमेंट really in the public eye acquire any legitimacy? मनीष साहब मैं बार बार इस बात की कर रहा हूँ, आप बता दें कि किसका क्या इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट तो ये है कि सपोजिंग द चैलेंज टू द 26th amendment succeeds. नहीं मैं जजेस की बात कर रहा हूँ, जजेस का इंटरेस्ट बता सर दें अगर कि चैलेंज सक्सीड हो गया तो उनकी they will revert to their high courts. हाँ किस कानून के तहत कभी ऐसा हुआ है कि जज एक दफा और वापस चला गया हो? जज कॉन्स्टिट्यूशनल जज, नॉट मैं पीसीओ की बात नहीं, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के केस के अंदर पीसीओ की बात नहीं, पीसीओ की बात नहीं कर रहा हूँ, पीसीओ की बात नहीं। पीसीओ नहीं, वो तो अलग मसला था ना। और चीज़। देखे ना, वो तो वायलेशन ऑफ ऑर्डर हो गया था। ये भूल जाए कि ये 26th amendment किसी पीसीओ से उन्होंने वो मुख्तलिफ है। they This is in the violated the nature of a instructions PCO. of the Supreme Court दूसरा and मलिक took the साहब, oath. what will be the effect upon these judges sitting in this court now? क्या बेनिफिट? हमने गालियां भी बहुत खाई हैं, खैर दैट इज इररिलेवेंट, तनख्वाह मराहत हम सब की एक है, क्योंकि फियर और फेवर दोनों चीजें हमारी ओथ का I am हिस्सा sure है। that I am जो sure मर्जी होता रहे, that the honorable judges who were appointed post the 26th amendment, they also care about the supremacy of this institution, about the public image that it has, about the signals that it sends, and they will understand. I would, if I had been appointed, I would understand my exclusion.